हेलो माय व्यूअर। आज का क्लास है फिजिक्स और उसमें भी प्रोजेक्टाइल बिना क्लासेस पर। फिजिक्स कैनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट 12 प्रोजेक्टाइल। कॉन्सेप्ट 2 फॉर रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये ओवरऑल प्रोजेक्टाइल में कॉन्सेप्ट नंबर 12 है और 11 कॉन्सेप्ट 1 से लेकर 11 तक हो चुका है और ये रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल का सेकंड कॉन्सेप्ट है। क्या है इसकी थीम? तो टू फाइंड velocity of a particle at point P xy when initial velocity of projection or simply when velocity of projection u। हम लोग को दिया हुआ है कि कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, वह है u, और हम लोग को पता लगाना है कि जब पार्टिकल पॉइंट p xy कोऑर्डिनेट पर जाएगा तो उस समय ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटीज है वो कितना है। तो देखा जाए इसका डायग्राम, तो डायग्राम में इस तरह से है कि ये ऑरिजिन हो गया और ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस। और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं इधर ओ एक्स को, और ओ वाई को भी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। और ये ऑरिजिन है और जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए हैं उसका जो स्पीड है वो कितना है, तो u है, और किस डायरेक्शंस में है, हॉरिजॉन्टली। और ऑब्जेक्ट एक इस तरह से ट्रैवल करेगा और यहाँ पर डायग्राम में जो स्पीड है वो u से प्रोजेक्ट किया गया है। और जैसे ये पॉइंट पर पहुंच रहा है तो इस पॉइंट का जो कंपोनेंट है अलोंग x एंड अलोंग y वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया vx और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया vy, और जो बीच में है इसी ग्राफ पर पैराबोला पर, जो बाद में पता चलेगा कि इसका इक्वेशन पैराबोला होता है, ये इसका डायरेक्शंस है वेलोसिटी का, जो कि यहाँ से एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो लिखे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, मतलब स्पीड, और ये जो है थीटा उसका डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख देते हैं x, y। और जैसे ही इस पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इधर पे, इसको m ले लिए, परपेंडिकुलर है, तो x कौन है, ऑरिजिन से m तक जाएंगे तो ये OM हो गया हमारा x, और m से जो p आ गया नीचे ये हो गया y।
और ये कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएंगे x, y। तो स्टार्ट करेंगे यहां से कि फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एक फॉर्मूला होता है Vx means velocity along x axis is equal to V naught x, and this answer is always equal to u, because initially the velocity is u and the object is moving horizontally with no acceleration, no force, because the gravity force is acting vertically downward. So the component of this vertically downward force along x axis is your mg cos 90, and that answer finally is 0. So no force horizontally, so no acceleration. So this Vx is equal to your V naught x. This V naught x is called initial velocity of projection, and this is equal to u, and finally Vx is equal to u. Reason? The object is in dynamic equilibrium. For horizontal motion. For the horizontal motion means along x axis, this has no component of the mg, because mg is acting always downward. Object start from here, it goes along this direction, and you can take the object suppose at the point B. So at the point P, this is the mg which is acting downward, and if we find the component of this force along horizontal direction, so this is mg cos 90, because this is 90 degree. So component of this mg force, net force acting vertically downward, this component is mg cos 90, that is known as acceleration, that is known as force along x-axis, and this is finally due to the cos 90 0, and since fx is equal to mass into acceleration x, written first law, second law for the your object which has the mass constant along x-axis, and here this fx is 0 because this is cos 90, and m is not 0 for the your Newtonian mechanics, and here ax is 0, means horizontally fx is 0, this fx is 0 horizontally, and acceleration is also 0, fx 0, acceleration is 0, or vice versa. If ax 0, force is 0. So there is no force horizontally, there is no acceleration horizontally. So the object is in equilibrium, and these are two types. First is dynamic equilibrium and second is steady equilibrium. And steady equilibrium means the object must be in the rest. Initially the object was not in the rest, so it is in the dynamic equilibrium. So the velocity Vx will be the same always during the motion, and this is equal to u. Therefore I have written the component along x-axis is always the same as that of the component along x-axis initially. So this u is in general form we are writing v naught x, and this is u. So finally Vx equal to u. This is one formula for the horizontal motion. Now think about the vertical motion. For
vertical motion, we know v square equal to u square plus 2as. Kinematics equation for uniformly extended motion in the junior class 9-10 you have gone through this one, you know this formula. तो इसी फार्मूला में जो v है वर्टिकल मोशन के लिखाएगा वी वाई स्क्वायर, और u जो है वर्टिकल मोशन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसका वेलोसिटी u है, तो जब इसका वेलोसिटी u दिखाई दे रहा है, अगर इसका भी कंपोनेंट अगर हम इधर निकालेंगे तो क्या कहलाएगा u cos 90। तो इसलिए वर्टिकली इस वेलोसिटी का कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री में है, और ये u का आंसर यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में 0 लेंगे, 2 का 2 लेंगे, a का एक्सप्रेशन लेंगे जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड प्लस g है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्टिकल के लिए, हमेशा y माइनस वाई नॉट। दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और इसी को सॉल्व करेंगे तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाई नॉट भी 0 है तो फाइनली आ जाएगा 2g वाई, और इसी का स्क्वायर रूट कर देंगे तो वी वाई निकल गया 2g वाई का स्क्वायर रूट। सो दिस इज द सेकेंड फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। अब दोनों कंपोनेंट हमारा निकल गया Vx और Vy, Vx निकल रहा है इक्वेशन 1 में, Vy दिख रहा है इक्वेशन 2 में। अब आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और इस डायग्राम को हम थोड़ा जूम करें तो जूम करने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा कि ये Vx है और ये Vy दिख रहा है, और दोनों का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हम इसको राइट एंगल रेक्टेंगल एक बना दे रहे हैं, दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके, और यहीं से जो जाएगा यही वाला हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, जिसको छोटा v लिख के स्पीड हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यही वाला एंगल है थीटा डायरेक्शन के लिए। तो यही वाला डायग्राम को मैंने बड़ा करके दिखाया कि पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है Vx, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये है Vy, और नेट है v और एंगल है थीटा। तो यहाँ भी है नेट है v, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, वर्टिकल कंपोनेंट Vy, और ये v हो गया स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो इसी थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और लिखेंगे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, क्योंकि Vx Vy एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ऐसे 90 डिग्री बना रहा है। तो नेचुरली 90 डिग्री अगर बना रहा है तो बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये समझ लीजिए बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हमको Vx Vy दिया है, पुट कर देंगे तो v स्क्वायर निकल गया, Vx की जगह बैठा दिए u का स्क्वायर, और Vy की जगह a वाला बैठा है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, या ये वाला चाहेंगे तो भी लिख देते हैं 2gy, इसका रूट ये Vy हो गया, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gy। अब इसी को स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gy, और ये आंसर्स फाइनली स्पीड का वैल्यू, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी का आंसर आ गया। और क्वेश्चंस में u दिया रहता है, g का वैल्यू 9.8 लो, और कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा 10 तब 10 लेना है, और y का आंसर ये वाला कोऑर्डिनेट दिया रहेगा कितना हाइट है, और वो पुट करके सॉल्व करने से भी निकल जाएगा। और इसी के बाद कंसेप्ट आएगा डायरेक्शंस, तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब इसका बगल में ही यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशन में हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ tan थीटा निकालेंगे इसी ट्रायंगल में,
तो tan थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया वी वाई और यहाँ हो गया वी एक्स, वी वाई का आंसर ये वाला है 2GY, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा वी वाई की जगह 2GY, वी वाई की जगह 2GY और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई वी एक्स का आंसर यू लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो नया आया, यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, ये वाला है वी एक्स और यहां पर हो गया फोर्थ फार्मूला। तो यहां भी अगर क्वेश्चन में जी 9.8 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, यू स्पीड दिया हुआ है कितना से फेंक रहे हैं, तो इसको पुट करने से tan थीटा निकल जाएगा। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन था कि आप निकालो कि क्या वेलोसिटी होगा उस पार्टिकल का या प्रोजेक्टाइल का जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है u के स्पीड से हॉरिजॉन्टली, और ये रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है जो बीच में 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में था कि अगर कोई इस तरह से प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसा जा रहा है, तो यहाँ फेंकने का डायरेक्शन u है और नीचे जो फोर्स काम कर रहा है वो डाउनवर्ड में है mg, यहाँ पर ये दोनों का बीच का एंगल, मतलब ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों के बीच में एंगल आ गया मोर देन 90, लेस देन 180, ऑब्ट्यूस एंगल मान लिया जाए ये है 150, तो ये कंटिन्यू चलते चलते यहाँ पर जब आएगा तो फिर डायग्राम अगर इसको देखेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये वर्टिकल शो करेंगे, तो ये 150 का मैंने ये दिख रहा है कि कोई छोटा एंगल होगा, तो इसको पता लगाइए कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो वही 30 डिग्री यहाँ इसका सप्लीमेंट्री एंगल दिखेगा। तो इसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा कि 30 है या नहीं है, लेकिन 30 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 150 डिग्री मान लिया थोड़ा देर के लिए, तो 150 से लगातार 30 आ रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि 150 होगा, ये होगा मोर देन 90, लेस देन 180, जो भी एंगल अगर थीटा लेंगे तो यहाँ पर आएगा वो 180 माइनस थीटा, दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली ये एंगल 150 से 30 चेंज कर रहा है, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और ये 90 डिग्री में है, इसलिए इसको दिया गया रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल। क्योंकि दिमाग में आ सकता है कि कैसे सर हम लोग समझें कि किस समय वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा, किस समय रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल होगा। तो जिसमें भी ये सब कंसेप्ट पढ़ाए हैं 1 से लेके 9 तक, सभी में ऐसे ही था, और वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का नोट कंसेप्ट था। 10वां नंबर में टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल बताए थे कि एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल और तीसरा होता है इंक्लाइंड प्लेन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में 9 कंसेप्ट है और रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल में 5 कंसेप्ट है, और दोनों के बीच में एक तो मतलब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल देने से वो 10वां कंसेप्ट हो गया है। और उसके बाद जो है तुम्हारा आएगा इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल, उसमें भी समझिए कि 9 कंसेप्ट के आसपास लाएंगे, और वो फार्मूला अगर याद हो जाए, उसी में खाली स्पेशल केस में कुछ यूज करेंगे जो ड्राइव करने का बताएंगे। तो बिना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़े हुए सारा आंसर लिख सकते हैं, खाली आपका इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल के हेल्प से। लेकिन कोई उल्टा अगर करना चाहे कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से उठा करके मतलब ला दे इंक्लाइंड प्लेन का, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो वो भी ला के आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको सोचते हैं। लेकिन इन जनरल वो आसान नहीं है।
और उसके बाद समझ लो कि जो क्वेश्चंस आता है ना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ना रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टाइल से आता है, और ना ही इंक्लाइन प्लेन से आता है। तो करता क्या है, डबल इंक्लाइन प्लेन दे देगा। फिर कुछ और भी कंसेप्ट दूसरे चैप्टर का मर्ज कर देता है, वर्क ऑफ एनर्जी का, मोमेंटम का, फिर फ्रिक्शन का, न्यूटन लॉ का, और ना जाने क्या क्या करेगा। वो तो क्वेश्चन जब देखोगे तो समझोगे। और उसके बाद उसमें लगेगा रिलेटिव का कंसेप्ट, और उसमें भी अगर आप वेक्टर का कंसेप्ट लगा के अगर रिलेटिव का करेंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से बनेगा। अरे वेक्टर की चीज़ को वेक्टर से ही पढ़ा जाता है, स्केलर का चीज़ को स्केलर से ही पढ़ा जाता है। आप वेक्टर की चीज़ से कंसेप्ट बनाना है, आप स्केलर से बनाना है, क्वेश्चन बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और बनेगा भी नहीं, टाइम भी लग जाएगा। पता चलेगा एक ही क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा, और परीक्षा में क्या रहता है 2 मिनट 4 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, तो आप 1 घंटा बनाते रहेगा तो नहीं ना होगा। तो इसीलिए सीखना पड़ेगा बहुत सी चीज़, बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो अब देखा जाए आगे क्या है ये चीज़, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखा जाए ये आंसर्स हमारा निकल गया। कैसे, तो क्वेश्चन था वेलोसिटी निकालो पार्टिकल का इस पॉइंट पर, अर्थात एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है, और यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, थोड़ा रिव्यू कर देते हैं कि पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये वाला लाइन लिखे हैं तो पहला इक्वेशन आया, फिर सेकंड के लिए वर्टिकल मोशन के लिए ये सब किए तो ये वाला आया, और यही 2 इक्वेशन, एक Vx u के बराबर होगा और ये जो आया यही तो इसका डेरिवेशन हुआ। और इसी डेरिवेशन के साथ हमने क्या किया, पाइथागोरस यूज करके ये वाला स्टेप लिख दिया और ये वाला भी स्टेप लिख दिया। अब सोचिए कि इसको अगर हम एक कंपाइल करके, मतलब कहा जाए कि नंबर 1 कॉन्सेप्ट हुआ कि फार्मूला विथ डेरिवेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोल सकते हैं कि फार्मूला विदाउट डेरिवेशन। तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं, इस पूरे बात को हम बोलेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए मतलब फार्मूला विथ डेरिवेशन, फार्मूला विथ डेरिवेशन मतलब ये फार्मूला को रटना नहीं है, घोटना नहीं है। ये फार्मूला कैसे आया, तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। तो ये ही मेथड दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका पढ़ने का। ये मत सोचो कि हम ड्राइव करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस सब चीज़ को इतना डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो कभी भी इतना एग्जाम के समय प्रॉब्लम बनाने में ड्राइव नहीं करना पड़ता है। वो माइक्रो सेकंड में सारा चीज़ आपके मस्तिष्क में बहुत हाई स्पीड से, मैंने बोल सकते हैं कि टोक्योन के स्पीड में, मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट उसका स्पीड होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल में आता है टोक्योन। तो बहुत हाई स्पीड से, या बोल सकते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग के स्टाइल में, बहुत फास्ट में, जैसे मन कैसे होता है बहुत फास्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बहुत फास्ट में वो ड्राइवेशन होगा और तुरंत दिखेगा प्रिंट की क्या है, तुरंत प्रिंट दिखेगा कि ये आंसर होगा, तुरंत प्रिंट दिखेगा आपका कि ये होगा, और तुरंत प्रिंट होगा कि ये आंसर होगा, तुरंत प्रिंट दिखेगा ये आंसर, अगर डेरिवेशन जानते हैं तो। लेकिन अगर डेरिवेशन नहीं जानते हैं तो स्टूडेंट लोग थोड़ा कोशिश करो तो मैथ में जैसे 28 चैप्टर है टीएमएच का, सारा 28 चैप्टर का सिनॉप्सिस जो टीएमएच बुक में दिया है, पेज नंबर 1 से चालू कीजिए और पूरा बोलिए तो असंभव। अगर हम कहेंगे कि नहीं ठीक है एक ही चैप्टर का बोलिए तो, कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलिए तो असंभव। क्यों कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 14 पेज में, 14 पेज में सिनॉप्सिस है, और 14 पेज का जब कॉम्प्लेक्स का पहला पेज खोजिएगा और उसका सेकंड पेज में जाइएगा, सेकंड पेज में एक तो 11 नंबर कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है इस तरह का चीज, क्या है कि AZ1 + BZ2 स्क्वायर
प्लस BZ1 माइनस AZ2 स्क्वायर्स इज इक्वल टू डैश। तो ये तो मतलब दिया हुआ है आंसर में, लेकिन हमने जानबूझ के उसका RHS निकाल के हटा दिया और हम बोलेंगे चलो इसी को ड्राइव करो। और ये आंसर्स TMH बुक में सिनॉप्सिस विदाउट प्रूफ डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अरे भाई ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया विदाउट प्रूफ तो बहुत अच्छा ना किया। आप उसको डिकोड करिए और जब उसको डिकोड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि IITs में ये 4 टाइम्स इन IIT यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप जानबूझ के आंसर नहीं लिख रहे हैं कि आप इसको रिसर्च करके निकालिए। तो सोचिए 14 पेज में सिनॉप्सिस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और 14 पेज का सिनॉप्सिस तो आप बोल नहीं पाओगे। अरे IIT का सिलेबस में 8 को कंसेप्ट होता है, अगर 8 कंसेप्ट भी अगर हम बोलेंगे कि 8 कंसेप्ट लाइन से बोलिए तो आप नहीं बोल सकते हैं, रैंडम में बोलिएगा तो भी नहीं बोल सकते। लेकिन जब हमारा टॉपिक्स आएगा तो हम उसको बहुत ऑर्गेनाइज वे में लिखेंगे, बोलेंगे और एक एक करके सारा टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और तब उसके बाद बोलेंगे एप्लीकेशन जहाँ का करना है करिए और क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्योंकि मैं अभी कंसेप्ट करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टॉपिक्स ख़त्म होगा, एक एक टॉपिक, तो हर एक टॉपिक्स पर हम एप्लीकेशंस कराएंगे। और एप्लीकेशन कराने का मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। हम पहले आपको 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको लिख देंगे और उसके आंसर ठीक 1 सप्ताह के बाद मिलेगा। मतलब 1 सप्ताह तक आप अपने उसको ट्राई कीजिए बिना किसी का हेल्प का। हम खाली क्वेश्चन लिखेंगे और हम बनाएंगे तो आपका पैसा 1 पैसा का भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाने का पैटर्न ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट के बदला टीचर ही बना रहा है। तो टीचर अगर एक्सरसाइज करेगा तो टीचर का ना बॉडी बनेगा। अब हम लोग को जितना बॉडी बनाना था बना लिए, हम लोग का समय पार हो गया। बनाना है स्टूडेंट का बॉडी, ठीक है, बॉडी माइंड सोल सब ठीक करना है, तो आपको खटना होगा। हमारा खाली डायरेक्शंस होगा, मेरे डायरेक्शन होंगे 1% और स्टूडेंट से खटवा लेंगे 99% और रिजल्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं कि टीचर 99% खट रहा है और 1% स्टूडेंट खट रहा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो समझिए, तो मैं थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बीच का बात बोल दिए, लेकिन ये टॉपिक्स समझ लीजिए खत्म हो गया। और इसी टॉपिक्स का हम एक स्क्रीन शॉट जैसा, या कहा जाए कि आजकल बहुत पॉपुलर है कि 1 मिनट में पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वीडियो बनाइए। तो बहुत जल्दी आप लोग को, खासकर JEE एडवांस और JEE मेन के बच्चे जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली हम एक शॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, जितना हो जाए इतना टाइम में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतना सब बना देना है तुरंत, लेकिन कुछ उसका एक प्रयास रहेगा ताकि आप उससे समझ पाएँ कि कैसे वो बनाया जाता है। और वो शॉर्ट रहेगा, सीधा समझिए 1 मिनट का, 59 सेकंड के अंदर का, और छोटा छोटा माने वीडियो में हम उसको डालेंगे 1 मिनट का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, मैथ्स का। आप अगर उतना देर 40 मिनट 30 मिनट नहीं झेलना चाहते हैं तो 1 मिनट झेलिए, और 1 मिनट में वो सारा कंसेप्ट टॉपिक्स वाइज, चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करेंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो देखते हैं, वो भी कंसेप्ट आया है हमारे दिमाग में। तो अभी हम उसी का एक नमूना के रूप में छोटा सा, खाली मतलब ये नहीं कहेंगे कि 59 सेकेंड, वो समझो 5 सेकेंड 8 सेकेंड का चीज़ है कि ये जो इतना पढ़े हैं, जिसको हमने कहा कि फार्मूला विथ डेरिवेशन, ये सेक्शन ए हुआ। अब इसी सेक्शन बी के लिख रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे सेक्शन बी। क्या है वो फार्मूला? कैसा फार्मूला? विदाउट डेरिवेशन, विदाउट डेरिवेशन मतलब इतना जो कैसे कैसे किए, क्या क्या किए, तो क्या मिला? इतना करने से मिला हमको ये वाला आंसर x और एक आंसर y, जबकि मेरा गिवन इंफॉर्मेशन था x, y और u। तो उसी के टर्म में ये आंसर लिखा गया है। तो देख ही लो कि यहां पर u और y तो आ रहा है,
यहाँ पर खाली u आ रहा है, x का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये सेक्शन बी जो फार्मूला लिख रहा है विदाउट डेरिवेशन, ये जो डिटेल में बताए हैं जिसको बोल सकते हैं फार्मूला विद डेरिवेशन, तो इसी का ये दूसरा रूप है कॉम्पैक्ट वे में कि फार्मूला विदाउट डेरिवेशन। वो क्या है, डायरेक्ट जो आंसर्स आया, क्या क्या आंसर आया, एक आया था पहला इक्वेशन ए वाला, तो हम इसको छाप दे रहे हैं यहाँ पर, देखो कि Vx बराबर u, पहला इक्वेशन। दूसरा छाप दे रहे हैं ये वाला, Vy बराबर 2gy, दो हो गया। अब यहाँ एक लाइन खींच दे रहे हैं, और तीसरा लिख देते हैं ए वाला कि v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy स्क्वायर, और चौथा छाप देते हैं tan थीटा इक्वल टू 2gy डिवाइडेड बाय u, और इसको नंबरिंग कर देते हैं कि ए वाला पहला फार्मूला था तो हम इसको आगे में लिख दिए, यहां पर लास्ट में लिखे थे उसको उठा के आगे कर दिए, ये 2 नंबर लिखे थे इसको आगे में लिख दिए, और 3 नंबर में ये था यहां पर, इसको उठा के आगे में कर दिए। और 4 नंबर में ए वाला है, ये यहां पर 4 नंबर लिख दिए, और यहां एक तो लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, और इसी को एक डब्बा में बंद कर दे रहे हैं, बॉक्स में, और इसी को आगे ऐसे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक नक्शा टाइप का बना दे रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं है तो क्या किया जाए, ऐसा लिख दिए, यही आ गया शॉर्ट, यही हो गया शॉर्ट, SHO RP बोलो, शॉर्ट बोलो, या इसी को R को चेंज कर दो तो एक तरह से समझो साइलेंट करके R को हम लिख देते हैं शॉर्ट। स्क्रीन शॉट जैसा एक छोटा सा दे दिए, तो अब देख लो बच्चों, इतना पढ़ाने को हमको कैसा किए, सेक्शन ए फार्मूला विद डेरिवेशन, कि कहां से आया, कैसे आया, पूरा लॉजिक, पूरा मैकेनिज्म, पूरा डेप्थ लगा के निकाला गया। और दूसरा होगा कि नहीं सर इतना मत बताइए, आजकल जैसे लोग पढ़ाता है कैसे करता है, मतलब तो हाँ, तो देखा जाए यहाँ पर आ गया कि सेक्शन ए में फार्मूला विद डेरिवेशन, और ये आ गया शॉर्ट या शॉर्ट, जो कि सेक्शन बी है बिना डेरिवेशन का डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि आजकल तो ऐसे ही पढ़ते हैं लोग, इतना सर फालतू का हम क्यों पढ़ने जाएं, डायरेक्ट ए वाला कर लेंगे। अरे इतना आसान नहीं है कि इतना छोटा छोटा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आप याद कर लो, ये याद तभी होगा जब पूरा डिटेल में डेरिवेशन जानेंगे, और उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में माने कॉम्पैक्ट होकर के ये फार्मूला आ जाएगा सेक्शन बी, और इसके बाद एक और आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या होता है, सेक्शन सी होता है जो भी आपने सेक्शन ए में डेरिवेशन से पढ़ा है और उसी को एक कॉम्पैक्ट वे में याद कर लिया है, या समझ के याद किया है या बिना डेरिवेशन का याद किया है। दोनों में डेंजरस है बिना ड्राइव करके याद करना है, लेकिन अगर ड्राइव करके करोगे तो ये याद करने का जरूरत भी नहीं होगा और डायरेक्ट खुद लिख लोगे। और इसके बाद सेक्शन सी होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन माने जिसको बोलते हैं, कंसेप्ट तो पढ़ लिए, विदाउट डेरिवेशन ये बहुत लो लेवल है, और ये हुआ डेरिवेशन के साथ फार्मूला का आंसर जानना, ठीक है।
तो ए वाला से बहुत बहुत लो लेवल है ए वाला। और आजकल तो इस लेवल से कोई पढ़ता ही नहीं है। जहाँ ऐसा कोई पढ़ा है बोले ये टीचर बहुत फालतू है, झूठ मूठ का पकाता है, इतना इतना बोलता है। अरे यही सही है, ठीक है। और इसी के हेल्प से ही तुम शॉर्ट जैसा 59 सेकेंड्स का छोटा छोटा वीडियो जो चाहते हो वैसा आप अपने मस्तिष्क में बना सकते हो 59 सेकेंड्स का, मतलब 1 मिनट से कम, ठीक है। और मैंने लेस देन सीधा समझो 1 मिनट का शॉर्ट बनाया। और ये तभी बनेगा जब ये डिटेल में मालूम है। तो सेक्शन ए से सेक्शन बी में आ गए, डायरेक्ट कोई बी में आ ही नहीं सकता है बिना ए जाने हुए। और इसके बाद सेक्शन सी में इसी बी का या ए का मेथड का एप्लीकेशंस होता है। और आजकल पढ़ाई का पैटर्न सही है, किसी को फुर्सत नहीं है, ना स्टूडेंट को ना टीचर्स को कि सेक्शन ए का डिटेल में 9, 10, 11, 12 में 4 साल पढ़ाया जाए। और कॉम्पेक्ट में भी फुर्सत नहीं है सेक्शन बी का कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सारा फॉर्मूला करा दिया जाए। असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। कोई वो सोचता कि कर देगा तो हम लेंगे ठीक है यहाँ खड़े हो जाइए, बिना कागज कलम का और कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा 14 पेज का सिनॉप्सिस बोलिए तो तब समझ में आएगा कि हाँ आटा चावल दाल बहुत 3 में नजर आएगा। और उसके सेक्शन ए और सेक्शन बी के बाद तब आता है एप्लीकेशंस। तो जिनका सेक्शन ए अगर है, बी नहीं भी है, तो सारा क्वेश्चन अगर नहीं भी बनाया है तो सारा क्वेश्चन बना देगा।